वालेकुम जी एंड प्यार भरी सत श्री अकाल आदाब। मैं हाँ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸ਼ਬੀਰ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਚੌਹਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਆਊਟਸਕਰਟਸ ਆਫ ਦਾ ਰੋਹਤਾਸ ਫੋਰਟ, ਤਲਾਕੀ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਨਾਰਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸਲੀ ਦਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾ ਨੇ ਉਹ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰਣਜੀਤ ਨਿਗਾਰਾ। ਔਰ ਰਣਜੀਤ ਨਿਗਾਰਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਟੀਮਸ ਹਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਣੇਗਾ ਕਿੰਝ, ਲੱਗੇਗਾ ਕਿੰਝ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਲਰ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਸਾਹਿਬਾ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਫੀਲਡ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਨੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੇਜ਼ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫੇਜ਼ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਰਣਜੀਤ ਨਿਗਾਰਾ YouTube ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਰਣਜੀਤ ਨਿਗਾਰਾ ਬੇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ USA ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਮੰਟੀਗਾ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਕਾਰ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹੱਥ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਫੈਮਿਲੀ ਐਂਡ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਸਾਹਿਬਾ ਔਰ ਫੀਲਡ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਜੀ ਰੁਬਾਬ, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम रुबाब फ़ातिमा चिश्ती है एंड आई एम हेडिंग द प्रोजेक्ट गुरुद्वारा चौहा साहिब। और ये मेरा नाम जी इश्तियाक है और मैं यहाँ पे फील्ड सुपरवाइज़र हूँ रेस्टोरेशन के हवाले से। जी प्लीज़। जी अभी आप क्योंकि कॉन्टीन्यूसली वीडियोस बना रहे हैं, सो पीपल हु आर फॉलोइंग द पेज उनको अंदाज़ा होगा कि हम किस तरीके से काम कर रहे थे। व्हेन वी एंटर्ड इन September 1st, हमारा पहला दिन जो था September 1st का था, वी स्टार्टेड टू ऑब्जर्व द बिल्डिंग। हम लोग 3 लोग हैं, मैं, रुबाब फ़ातिमा चिश्ती, उस्मान फैज़ी, मीर शहर आर्मी, जो थ्रू आउट प्रोजेक्ट का हिस्सा रहे हैं अभी तक। अब हमने शुरू में ये किया है, हमने बिल्डिंग को ऑब्ज़र्व किया, जैसे मैंने आपको बताया। हमने बिल्डिंग की ऑब्जर्वेशन के बाद उसकी ड्राइंग्स की एज़ इट इज़ जिस हालत में वो थी। फिर उन ड्राइंग्स के बाद हमने साथ साथ रिसर्च वर्क ऑन साइट शुरू किया, जिसमें हमने गुरुद्वारे की क्लीनिंग का प्रोसेस क्या होना चाहिए, गुरुद्वारे की रेस्टोरेशन का प्रोसेस क्या होना चाहिए, गुरुद्वारे की अभी लाइफ क्या है, स्ट्रक्चर किस हद तक स्टेबल है, किस तरीके से हमने स्ट्रक्चर वाले पॉइंट ऑफ व्यू से गुरुद्वारे के ऊपर लोड डालना है नया, या अगर हमने लेबर लगानी है या स्कैफोल्डिंग लगानी है तो उसका क्या तरीक़ेकार होगा। जिस तरह आपको मैंने शुरू में बताया था, स्कैफोल्डिंग को 1 महीना लगा था। क्यों? क्योंकि स्कैफोल्डिंग सारी जुदा है बिल्डिंग से, पूरा का पूरा जो उसका चारों चफेरे जो स्कैफोल्डिंग लगी हुई है वो बिल्डिंग से फ़र्क दूर है, और जहाँ पे उसने बिल्डिंग को टच करना है उसके आगे एक लकड़ी का फट्टा और उसके पीछे फॉर्म लगा हुआ है कि इन केस हवा का प्रेशर आता है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसीलिए बता रही हूँ कि पूरा ब्रीफ हो जाए प्रोजेक्ट। जब हवा का प्रेशर आता है तो उसको पकड़ने के लिए अगर वो प्रेशर डालती है बिल्डिंग पे, फ्लैट हिस्से पे लकड़ी का पीस और फॉर्म लगा हुआ है, बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं होता। फिर उसके बाद अगर हम लोग ऊपर देखते हैं छत की तरफ, तो छत पे हमने पूरा वाटरप्रूफ स्ट्रक्चर बनवाया हुआ है। ऊपर सारा हमने तरपाल से पहले उसका स्कैफोल्डिंग स्ट्रक्चर बनवाया है, उसके ऊपर जो है अब हमने एक बिल्कुल और एक तरपाल का प्रॉपर हमने एक ऊपर सेटअप लगाया, जिसकी वजह से पानी जो है वो एक ड्रॉप भी आपका जो है ऊपर खड़ा नहीं हो सकता। मतलब जो भी आता है वो तकरीबन सारा नीचे चला जाता है उसका ना। बारिशें वगैरह जितनी भी हुई हैं उसमें भी आपका पानी ऊपर अभी तक मेरा नहीं ख्याल कि कोई गया है। और नीचे 3 लेयर्स प्लास्टिक की भी हमने बिछाई हुई हैं, जो कि काफ़ी हद तक उसको प्रिजर्व कर रही हैं। मेजर वजह ये है कि जब आप PLC रिमूव कर देते हैं ना बिल्डिंग से, जब आप छत से एक लेयर उतार देते हैं जो पुरानी है, और उस लेयर को मैंने आपको पहले भी बताया, उतारने की वजह ये है
कि हमने उसको दोबारा बनाना है। उसमें से अभी पानी सीप इन करता है नीचे बिल्डिंग में, और अगर बिल्डिंग को पानी लग जाता है, किसी भी बिल्डिंग को, चाहे वो रेस्टोरेशन की बिल्डिंग हो, पुरानी नहीं, बिल्डिंग बर्बाद हो जाती है। सेम आ जाएगी और सेम जी, के साथ साथ वो बिल्कुल। खराब होना शुरू हो वो जाएगी। तो हम किसी सूरत रियल अफोर्ड कलर भी नहीं चला कर जाएगा सकते। उसका। कलर भी आप समझने फ्रेस्को तक बर्बाद हो जाते हैं अगर पानी वाह। लगता है तो। ठीक है, पानी इतनी बुरी चीज़ है बिल्डिंग के तो अंदर, इस बिल्डिंग को वैसे भी जो है पानी मार करता है, क्योंकि पानी ये मार करता है पहाड़ी के पीछे साथ से। जुड़ी हुई है। अभी इसका हमने ये सोचा हुआ है, जो पहाड़ी के साथ जुड़ी हुई है, हमने पूरी फ्रेंच ड्रेन निकालनी है पीछे और एक प्रोटेक्टेड वॉल बनानी है। ओके। 4 से 6 फुट की दीवार बनेगी इसके पीछे, स्टोन में या ब्रिक में, वो अभी हम देख लेंगे, फाउंडेशन से बात करेंगे। उसमें ये है कि पीछे का पानी पीछे रुकेगा और प्रॉपर रास्ता उसे मिल जाएगा। जब इस तरह हो जाता है ना, तो आपकी बिल्डिंग वैसे ही प्रोटेक्ट हो गई है चारों तरफ से पानी से। दूसरा जो है जी, हम बात कर रहे थे छत के बारे में। जी, बिल्कुल। हमने छत पे कोई भी काम शुरू करने से पहले उसको वाटरप्रूफ करवाया, स्ट्रक्चर उसका ऊपर का फ्लोटिंग स्ट्रक्चर बनाया। अब रेस्टोरेशन के असूल होते हैं कि जब आप कोई भी बिल्डिंग पे आप मज़ीद लोड नहीं डाल सकते हैं किसी भी सूरत में, चाहे वो स्कैफोल्डिंग की सूरत में है, चाहे वो ईंटों की सूरत में, बिला वजह का कोई लोड नहीं डाल तभी सकता तो है हमने वो मटेरियल सारा साइड पे इकट्ठा किया कि हमें अप्रोक्सीमेटली आइडिया हो जाए कि कितना कि हमने वेट हम कितना उठा मटेरियल चुके जो है हैं। उसमें से जी। उतारा है। एग्जैक्टली। दैट्स वेरी ग्रेट। अब उसके बाद हमने पीएलसी छत की रिमूव की है। उसकी वजह यह है कि पीएलसी की वाटरप्रूफिंग ख़त्म हो गई हुई थी और वो नीचे पानी सीम कर जाता है। बारिश होती है तो गुरुद्वारे के अंदर तक पानी आ जाता है। वो लेयर क्रैक हुई है, क्या हुआ है वो ऊपर वो आई थिंक मटेरियल की लाइफ ख़त्म हो गई। ओह 100-150 साल हो गया और जितनी यहाँ बारिश पड़ती है, अभी हमने बारिशें देखी हैं, लिटरली हमारे बंदे उड़े होते थे जब वो ऊपर कपड़ा बांधने जाते हैं, कपड़ा ओह, बांध देते हैं चारों इतना साइड एयर से। प्रेशर के एयर pocket प्रेशर बनता बहुत है यहाँ क्योंकि कुछ है नहीं ना, लाइक पे? एयर इर्द पॉकेट गिर्द बनती है पूरी पूरा उसके फोल्डिंग के अंदर। इसी वजह से उसका पहले डोम बनवाया हुआ है ऊपर प्रॉपर, फिर उसके बाद उसको फ्लैट करवाया। क्या इसीलिए बिल्डिंग के अंदर जो है क्रॉस वेंटिलेशन के लिए जो है वो छोटे छोटे सुराख अभी छोड़े आप गए देखें कि बिल्डिंग पे प्रेशर ना बने? बिल्कुल ऐसे ही है, वाह, बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि खिड़कियां भी लग के बंद हो जाएंगी। 12-13 किलोमीटर पर आवर की हिसाब से यहाँ पे हवा चलती है नॉर्मली। ये नॉर्मल है यहाँ की हवा और जो जब मतलब हवा मेजर चलती है ना, तो हमने दरख्त भी गिरते हुए ऑब्जर्व किए हैं इधर ही, इसी जगह पे। और हमारी इसके फोल्डिंग हालांकि प्रॉपर स्ट्रक्चर है, वो यूं हिल रही होती है। हम्म, इसी वजह से कुछ जगह पे हमें स्टॉपर्स देने पड़े हैं बिल्डिंग में, जिसका मैं आपको बता रही थी कि लकड़ी लगाते हैं, फॉर्म लगाते हैं, इट स्टॉप्स द स्कैफोल्डिंग फ्रॉम फॉलिंग। ठीक ठीक ठीक। ये हो जाता है। फिर बेसिकली पीएलसी की लेयर रिमूव हो गई है। अब दोबारा जब हम गुमटियों का, अब आपको पता है कि पालकियाँ बननी है 4 और एक 4 गुमटियाँ बननी है, एक पालकी बननी है दरमियान में। अब उसके लिए पहले हमने उसका फर्श का बेड लगाना है, पालकी का और गुमटियों का, फिर उसके ऊपर ओवरऑल पीएलसी की लेयर चलेगी, फिर जी, उसके जी। ऊपर बिचुमेन की लेयर आएगी। बिचुमेन वाटरप्रूफिंग सिस्टम है, जिसके बाद पानी बिल्कुल नीचे नहीं आ जी, सकता। और जी। बिचुमेन चलेगा जो पैरापेट को क्या कहते हैं, नहीं पैरापेट नहीं होती साइड पे, बन्ने, जी जी। बन्ने के ऊपर भी बिचुमेन की शीट डलेगी ताकि हाँ जी। पानी की लीकेज जीरो हो जाए, बिल्डिंग में ऊपर से ओके। पानी नहीं आए। फिर उसके ऊपर दोबारा पीएलसी की लेयर डलेगी, जी क्योंकि हमने बिल्डिंग की शक्ल वही दिखानी है जो ऐसे ऑलरेडी ही, है, ऐसे ही। और उसको ज़्यादा प्रोटेक्ट करना है पानी से। जी जी। फिर उसके बाद अगर आप दूसरी चीज़ देखते हैं, पानी के बारे में अगर बात कर ठीक रहे हैं, है। बिल्डिंग को पीछे से पानी लगता है क्योंकि पहाड़ के साथ अटैच हुई हुई जो है। जैसे आपने उसके बताया कि फ्रेंच जो है वो उसके आप लिए ड्रेन फ्रेंच का- ड्रेन करेंगे और ऐसे उसके ही। लिए पीछे एक बंद बांध देंगे ईंटों का या ब्रिक की, बेसिकली एक रिटेनिंग वॉल बना देंगे, हो सकता है Retaining wall कंक्रीट जो की है, बना दें क्योंकि बिल्कुल जुदा है बिल्डिंग को bother ना गुरुद्वारे से। करेगा। नहीं, हाँ जी। बिल्डिंग को बॉर्डर पानी नहीं करेगा। फिर उसके बाद हम नीचे आते हैं तो नीचे 3rd फ्लोर जो है, 2nd फ्लोर जो है वो पूरा प्लास्टर है। उसका जो प्रकाश स्थान है उसमें पक्का कली अंदर और बाहर, उसकी डोम पूरी रिपेयर होनी है, ऊपर का डोम वर्क होना है। उसके बाद उसका फ्लोर जो है, क्योंकि 2nd फ्लोर और 1st फ्लोर की कसाई होनी है सिर्फ, जी। क्योंकि उनके फ्लोर बचे हुए थे किसी हद बच्चे, तक, किसी हद बेसिक क्रैक्स हैं जो कसाई में निकल जाते हैं। ओके। तो ज़रूरत नहीं होती आपको बिला वजह बिल्डिंग को पूरा उखाड़ने की, जबकि वो बेहतरीन तरीके से गुजारा कर रहे हैं। अच्छा, तो 2 फ्लोर्स हमने नहीं जैसे छोड़े। कि हमने वो देखा है लाइम का जो फाइन जो थी, बस वो जो है वो ऊपर देख के और उसको वो तो लाइम की फाइन क्वालिटी है जो हमने इसके सैंपल ऊपर हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग इसके ऊपर की 1 सूतर या 1.5 सूतर की लेयर उतारें, जो कसाई की लेयर है बेसिकली, Yes, वही मैं उसी को उतार के दोबारा उसके ऊपर जो है ना वो दोबारा लगा दें, ताकि उसके जो क्रैक्स हैं वो भी नीचे से थोड़े से पता चल जाएंगे कि किस हद तक वो कितने क्रैक्स हैं। वो- उसको रीफिल करेंगे क्रैक्स को फिल करने के बाद हम लोग इसके ऊपर कसाई की लेयर लगा देंगे, जो कि काफ़ी हमारे लिए हेल्पफुल होएगी। और
वैसे भी मतलब दोबारा हम लोगों को सारा ये उतार के दोबारा पीएलसी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। ठीक हो गया, मतलब कि काफी हद तक वो ऊपर वाला पोर्शन जो है उसमें आपको- सेकंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, जी ठीक क्योंकि एक तो वहाँ पानी जाने के चांसेस कम कम थे, हैं। दूसरा वहाँ फुटफॉल बहुत कम था क्योंकि लोग जिन्होंने भी बर्बाद किया नीचे से ही किया, या उन्होंने पानी ने छत को बर्बाद किया, नीचे भी पानी आता रहा है ना, ऐसे ही, बेसिकली मेजर ऐसे ही। यही हुआ। जब आई थिंक हमने जब लास्ट वीडियो की थी, थर्ड लास्ट वीडियो, जब हमने अंदर से डाटे डिस्कवर की थी, तो डू बिल्कुल। यू रिमेंबर मैंने आपको दिखाया था दीवारें गीली थी सारी, गीली वो नीचे से पानी उठा हुआ, अच्छा नीचे से ही जा रहा था क्योंकि ये घन नाला गुजरता था, तो जब यहाँ पे बाउंड्री वॉल टूटी होगी, घन का बंद जब टूट गया, सारा पानी अंदर आता, ओके फ्लडेड वाटर, सारा कुछ पानी ने बहुत ज़्यादा डैमेज किया इन वे। फिर उसके बाद हम जब कसाई की लेयर करते हैं तो हमारे फ्लोर तैयार हैं, जो छतें आप देखते हैं उनके ऊपर से हमने एक लेयर उतार दी है प्लास्टर की, ताकि हम उसको रीप्लास्टर कर सकें, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग लेयर थी उसके ऊपर पेंट सीमेंट काफ़ी कुछ लगा हुआ था। तो अच्छा अब जो छतें आप अंदर देखते हैं ना, पिंक से कलर की वाइट मटेरियल लगा हुआ है, दैट इज़ बेसिकली द ओरिजिनल छत, उसके ऊपर एक प्लास्टर की लेयर लगेगी तो वो बिल्कुल ब्लेंड इन हो जाएगा। छत के ऊपर भी बेसिकली जो कली पोचा पहले हुआ था, मतलब वही हमने उसको उतारा, जो नीचे का उसका प्लास्टर था वो उनका प्लास्टर उधर का उधर ही है, ठीक है, उसको हमने नहीं उतारा। उसके ऊपर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो एक लेयर छोटी सी लगाएंगे जी। ताकि उसकी हालत जो है उसकी जो है उसको थोड़ा सा साफ़ किया जा सके, मतलब प्लेन थोड़ी सी उसकी कंडीशन हो, लेकिन नीचे का प्लास्टर जो है वो उधर का उधर ही रहेगा। ओके ये पॉइंट देखें, जब वी टेल यू थिंग्स ताकि व्यूअर्स देखें, उसका पॉइंट ये होता है कि व्हेन एवर यू आर सीइंग अ रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट गोइंग ऑन, आप कहीं पे सेवा देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, दीज आर द थंब रूल्स जो आपने देखने हैं, आपने कुछ तोड़ने नहीं देना है बिल्डिंग बिल्कुल बिला वजह। अगर सीमेंट है ठीक है तोड़ें, ये सारी चीज़ें, इट्स व्हाट आई लाइक अबाउट मेकिंग दीज वीडियोस, जी जी इट्स मोर ऑफ लर्निंग जी प्रोसेस जी फॉर प्लीज आप हैं, मैं हूँ, कोई भी है, वो सीख रहा है कि रेस्टोरेशन किस तरीके से होनी चाहिए। और जो जिस तरह आपने ऊपर सेकंड फ्लोर देखा है और वो पूरा चिजल हुआ हुआ है, उसके ऊपर उन्होंने सीमेंट लगाने का इरादा किया हुआ था, जिन्होंने भी ये किया है, उसने बिल्डिंग की लाइफ 50 साल की कर देनी थी। अब 50 साल में मैं जिंदा हूँ, आप जिंदा हैं, पता नहीं, ठीक है, उनकी सेवा की वाह वाह होगी, लेकिन बिल्डिंग नहीं बचेगी फिर। बिल्डिंग नहीं आपके इतिहास दिखाने के लिए आपके पास नहीं बचेगी वो बिल्डिंग, ऐसे ही है क्योंकि अब आप इसको इस तरह से मिसाल ले लेना कि एक चीज़ का आप सांस बंद कर रहे हैं, कितनी देर रहेगी? जो मटेरियल्स हम आपको जब बार बार मटेरियल्स दिखाते हैं, बताते हैं लाइम है, कंकर है, पुराना ये था, ये नया है, वो इवेंचुअली ब्लेंड इन कर जाए, ओह वो इवेंचुअली एक यकजान चीज़ बन जाएगी। ठीक है अगर आप इनके दो ऑपोजिट चीज़ें हैं, अगर आप, मैं कहूँ कि एक लाइम के साथ आप स्टील चला दें, दे आर नेवर गोइंग टू मेक अ बॉन्ड। उसी तरह लाइम की बिल्डिंग और सीमेंट का कभी बॉन्ड नहीं बन सकता। जब हमने सीमेंट रिमूव किया ना, तो ये आपके सामने खड़ा है, सीमेंट रिमूव किया, एक ढस लगाते थे ना, पूरी चीज़ नीचे आ जाती, अच्छा वो ठहर ही ये नहीं अभी रहा कोई भी आप बॉन्ड है ही पीछे नहीं, दिखा कोई भी सकते चीज़ हैं आप अभी कि पकड़ अभी लें। तक जो है वो सीमेंट रिमूव इससे पूरी तरह नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग अगर इससे ज़्यादा सीमेंट रिमूव करते हैं तो ये ईंट को हम लोग चिज़ल करना पड़ता है, ज़्यादा करना पड़ता है, जिससे ईंट की अपनी जो वो लाइफ है वो ख़त्म होएगी। इस वजह से हमने इस हद तक इसको छोड़ दिया, जिस हद तक हम लोग उतार सकते थे इसको उतार दिया। बाकी आप पीछे देख भी सकते हैं कि मतलब अभी तक आपको नज़र आ रहा है कुछ हिस्से हैं जिस पे अभी तक जो है आपको सीमेंट नज़र आ, क्योंकि वो छोड़ ही नहीं रहा ईंट को, और इसको कोशिश करेंगे बफ करके हम बफिंग लोग तो होनी है, इसी तरह से इसको उतार। इसको बफ करेंगे ताकि जो ज़रे ज़रे बच जाए वो ठीक है, अफोर्डेबल है, बाकी नहीं। इसके रुबाब हम अलावा आगे क्या करने जा रहे हम आगे अभी हैं जी देखें, अभी स्टेप 1 था सफाई, जी। बड़ा पेशेंटली आपने हमने सफाई की। दूसरा स्टेप है रिपेयर वर्क, जो अभी रिपेयर आप ऊपर देख अभी के आए हमारा हैं रिपेयर स्टूको में। वर्क होगा हाँ जी। तीसरा है प्लास्टर्स, जी चौथा है छत का प्लास्टर, पांचवा है ज़मीन का प्लास्टर, की पॉइंट पे करते हैं आप, सारे दाग धब्बे छींटे बिल्कुल। गुजर जाती हैं, उसके बाद बिल्कुल। आप करते हैं। पांचवा जो है उसमें हमने फिर पक्का क्लियर फिनिशेस की तरफ आ जाना है। ओके छठा होगा अगर फ्रेस्को होता है इसमें। ठीक है, यानी कि हम 2 में चल रहे हैं आप इस तरह समझ लेना जिस तरह घर बनता है, पहले जी, जी। डिगिंग होती है, जी ग्रे जी स्ट्रक्चर खड़ा होता है, फिर फिनिशेस आती हैं, फिर फिनिशेस ऐसे के ही है बाद सॉफ्ट फिनिशेस आती हैं बिल्कुल जिसमें सही आप है इंटीरियर कर देते हैं। तो इसी तरह ही इसका ओके भी अभी स्टेप्स इसके बाद चलेंगे। हमारा तीसरा स्टेप शुरू होगा इसके अभी हम बाद हाँ जा जी रहे हैं तीसरा स्टेप जो शुरू होगा। कंटिन्यू है हमारा दूसरा इसके बाद तीसरा स्टेप तीसरा स्टेप जी शुरू होगा होगा जिसमें तो प्लास्टर लग रहा होगा, रिपेयर वर्क हो गया तो होगा। ऑलमोस्ट हमारा ये जो है वो जो है अगस्त गुरुद्वारा जी कोशिश यही है, के ऑनवर्ड हमारा अगस्त से सितंबर तक जो है वो कोशिश ऑपरेशनल हमारी यही है कि हम नवंबर से पहले पहले प्रोजेक्ट डिलीवर कर दें, ओके ताकि जो बड़ा इवेंट आना है गुरु पूरब जो गुरु है पूरब जो है, उससे पहले पहले हम लोग ये
यू नो ऑनरी एक चीज़ कर सकें कि वो लोग आएँ और उसको विज़िट करें एज़ अ फंक्शनल गुरुद्वारा। जी बिल्कुल। लेकिन अगस्त तक ये हो सकता है कि प्लास्टर वर्क हमारा खत्म हो सकता है। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह कोशिश यानी कि यही होगी। फाइन शेप हमें फिनिशेस नजर रह आ जाएंगी ना, तो फिनिशेस ये भी हो वो तो सकता है टाइम कि बाय टाइम करना पड़ता है। विद टाइम मतलब विद द फंक्शन गोइंग ऑन इन द बिल्डिंग भी हो सकती है। जी बिल्कुल सही। बाहर से जितना करना है, जिस तरह फर्श बनाना है, ड्योढ़ी बनानी है प्रॉपर, वो सारा कुछ विद टाइम हो जाएगा। ओके। उसमें फिर अंदर प्रकाश भी हो सकता है, बिल्डिंग चल भी रही हो सकती है, जी क्योंकि लेबर इज़ वेरी ट्रेन्ड नाउ कि उन्होंने जी। एक गुरुद्वारे को किस तरह ट्रीट करना है। सो ओके। आइदर अभी भी हम इसको इसी तरह ट्रीट करते हैं जैसे फंक्शनल गुरुद्वारा है। हम सर ढके बगैर नहीं जाते, ठीक है, जूता पहनना पड़ता है क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट है, जी जी चलना नामुमकिन है आपके सामने है। बिल्कुल ऐसे ही है। इसके अलावा कोई ऐसी हरकत नहीं है जो यहाँ पे हो रही हो जो कि नाजेबा हो एक इबादत की जगह के लिए। तो बिल्कुल चाहे ऐसे ये फंक्शनल हो ना हो, हमारी लेबर अब पूरी तरह ट्रेंड है। ही। अच्छा 6 महीने तो गुजर गए हैं। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਰੂਬਾਬ। ਜੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੁੱਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਓਨਰ ਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਸਮਰੀ ਵੀ ਅੱਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਸਾਹਿਬਾ ਔਰ ਇਸ਼ਤਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਣਜੀਤ ਨਿਗਾਰਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਜਾਂ YouTube ਪੇਜ ਹੈ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰਸ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਰਣਜੀਤ ਨਿਗਾਰਾ ਕੋਲ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਨਿਗਾਰਾ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈਲਾਈਟਡ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਔਰ ਰਣਜੀਤ ਨਿਗਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰਦੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸ਼ਬੀਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਿਨ ਭਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਚੋਹਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਊਟਸਕਰਟਸ ਆਫ ਦੀ ਰੋਹਤਾਸ ਫੋਰਟ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।